Hello everyone, welcome to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. Today we are starting second session. The name of chapter is Number Sense. और chapter number जो first है उसमें जो topic name है Comparison of Number. Comparison of number. And what is the meaning of comparison of number? Comparison of number means होता है two numbers को compare करना. Okay? If you have, अगर आपके पास कोई four thing है, ठीक है, for example आपके पास 4 pencils हैं और आपके friend के पास 2 pencils हैं, तो compare करोगे तो किसके पास ज़्यादा होगी? Obviously जिनके पास 4 होगा, it means आपके पास. Okay? तो 4 thing extra होगी 2 के comparison में. Okay? तो अभी हम compare करेंगे. If I am writing 45 and here is 54, so which one is greater, 45 or 54? 55 is a greater. This value is a greater. Okay. And one more thing. If we have comparison of number, here is the 4 points. This is the first point. If the numerals have different number of digits, then the number with more number of digits is greater. हम compare कैसे करेंगे कि numbers जो हैं वो digits की जो count करना है हमें 1, 2, 3 digits में है या 2 digits में है. If there is a 3, और अगर हम 2 से compare करते हैं तो 3 वाला value क्या हो जाएगा, greater हो जाएगा. Next, if the numeral have same number of digits, then we start comparing the digit from the left. Compare the digits at 100 place. Okay. Now we are taking some examples here. If I am writing here 325 and here is 48. Look at here, ones and tens, ones, tens and 100. तो here is a 3 digits. आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 digits है और यहाँ पे कितना है 2 digits. Okay, तो which one is greater? This one is greater. 325 is greater number और 325 हम easily बता सकते हैं कि greater है. और हमने कैसे define किया इसको? हमने यहाँ पे 1, 2, 3 digits को देखा और यहाँ पे हमने किसको देखा 2 digits को देखा. Okay, तो 2 और 3 में हम comparison करेंगे तो 3, 1 is greater. Now we will take some examples. 3, 2, 5, 4, 3, 6. 3, 2, 5 सेम नंबर ही लिख दिया मैम ने. ओके. एंड 4, 3, 6. तो 3, 2, 5. Here is a ones, tens and 100. Now here is ones, tens and 100. ओके. तो ones, tens and 100 है और हमें किस प्लेस पे कंपेयर करना है 100 प्लेस पे कंपेयर करना है. तो here is 3 digit और यहाँ पे कौन सा है 4 digit है. इस साइड पे आपको 3 digit मिल रहा है, here is 4 digit. तो दोनों में कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों में कंपेयर करना है आपको 3 और 4. इन दोनों में कंपेयर करने के लिए आप क्या देखेंगे 3 और 4 में से 4 नंबर इज ग्रेटर, 4 नंबर इज ग्रेटर. ओके. नेक्स्ट वन इज if this is a third and this is fourth point. Third point is, read with me, if the digits at 100 place are same, then they compare the digit at 10th place. Which place? 10th place. Look at here, 3, 4, 5 and 3, 3, 2. So these are similar, it means same, and 4 and 3 is different number. Same thing is, if the digit at 100 and 10th place are same, 100 place पे भी और 10th place पे भी अगर similar है, then compare the digit at 1st place. तो हमें किस पे compare करना है 1st place पे compare करेंगे. Okay. Now I will take some more examples. 4, 6, 3 and 4, 6, 4. अब 4 और 6 दोनों सिमिलर है, आपको दोनों सेम मिल रहे हैं. ये जो बोथ नंबर है आर सेम, राइट. फिर हम कौन से प्लेस पे जाएंगे, हम वंस प्लेस पे जाएंगे. ओके. तो वंस प्लेस पे जाएंगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है. तो विच वन इज ग्रेटर, 464 नंबर इज ग्रेटर. इफ आई एम आस्किंग अबाउट 3, 2, 6 and 3, 7, 9. Okay, so here is 3 and here is 3. Both are same. This is same digit. Now 2 and 7. We are going to 10th place. हम कौन से place पे जा रहे हैं
10th प्लेस पे जा रहे हैं। ओके, तो 10th प्लेस पे अगर हम कंपेयर करते हैं, बिकॉज कंपैरिजन है, नंबर्स को कंपेयर करना है हमें, तो 7 नंबर और 2 नंबर, हियर इज 2 एंड हियर इज 7 नंबर, तो 7 नंबर और 2 नंबर्स में से विच वन इज ग्रेटर, दिस नंबर इज ग्रेटर, तो 326 ग्रेटर देन 379, तो दिस नंबर इज ग्रेटर। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज ascending and descending orders. What is the meaning of ascending orders and descending order? ascending का meaning क्या होता है और descending का meaning क्या होता है वो हम समझते हैं। ascending meaning होता है बेटा, look at the board, आप यहाँ देखेंगे कि आपको ascending order और descending order, यहाँ मैम ने कुछ stairs ड्रॉ किए हैं, राइट? here is 1 2 3 and 4 आपको स्टेयर्स मिल रही हैं और इसमें मैम ने कलर चूज किया है रेड कलर। ओके, हमने रेड कलर से डिफाइन करेंगे, इट मींस दिस इज विच इज दिस वन इज असेंडिंग। ओके, देखिए ये 1 2 3 4, इससे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ स्टेयर पे आए, नेक्स्ट स्टेयर पे जाएंगे तो 2, देन 3rd, देन 4th स्टेयर पे पहुंच जाएंगे, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। एरो कहाँ जा रहा है मेरा, देखिए जो एरो बनाया है मैंने, ये इंक्रीजिंग के ऑर्डर की तरफ जा रहा है। इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट इज सिमिलर। ओके, इट मीन्स जो आपने जब प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ा होगा, आप लोगों ने, मैम ने लिखवाया होगा फॉरवर्ड काउंटिंग, तो जो फॉरवर्ड काउंटिंग लिख रहे हैं ना आप, 1 1 प्लस उसमें करते जाते हैं, है ना, 1 1 नंबर हम एक्स्ट्रा लिखते जाते हैं। आई एम राइटिंग हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, 1 1 नंबर जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है, ये सब नंबर्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। इट मींस जो ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, दीज आर असेंडिंग ऑर्डर्स। ये किस में है, कौन से ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर। सेम अपोजिट साइड जो रहता है इसका, वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। विच वन, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है वो देखते हैं हम। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैम ग्रीन कलर चूज कर लेते हैं। ओ वाओ, ये तो मेरी टी शर्ट से मैच कर गया है, ग्रीन 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 ग्रीन। ओके, हियर इज ग्रीन कलर, दिस हियर इज रेड, एंड नाउ वी आर टेकिंग ग्रीन कलर। 3 3 4 wait 3 2 now 1। ओके, 4 3 2 1, ये क्या हो गया, मैम ने एरो कैसा बनाया है, मैम ने एरो डिक्रीजिंग की तरफ बनाया है। इट मींस ये नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर इट इज सिमिलर, दोनों सेम ही होते हैं। अगर क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है तो बोथ आर इक्वल। ओके, तो 4 3 2 1 ये बैकवर्ड काउंटिंग है। जैसा मैम यहाँ पे लिख देते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हमारा असेंडिंग हो जाएगा। बट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दीज नंबर्स आर किस ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्लियर। वन मोर एग्जांपल ले रहे हैं मैम यहाँ पे। इफ आई एम राइटिंग हियर 51 72 83 देन 90। ओके, अब बताइए मुझे ये किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है। यस, दीज नंबर इज असेंडिंग ऑर्डर। किस में है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, इफ आई एम राइटिंग हियर सेम नंबर को, ये जो हमें दिए हुए हैं नंबर्स, इन्हीं नंबर को अगर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, विच वन इज ग्रेटर, 90 इज ग्रेटर, तो हम 90 को पहले लिखेंगे। देन आफ्टर 90 83, आफ्टर 83 72, आफ्टर 72 51। ये किस में हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर, व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर फ्रॉम
स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। हमें कैसे लिखना है, हमने जो स्टेयर्स देखा था उस पे 1 2 3 4 लिखा था, राइट। तो 1 2 3 4 जो लिखा था हमने स्टेयर्स पे, वो क्या हो रहा था, स्मॉलेस्ट डिजिट से लार्जेस्ट डिजिट की तरफ मूव कर रहे थे हम। तो ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, वी से नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, सेम असेंडिंग का जो अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। When the numbers are arranged in order from the largest to the smallest, we say numbers are arranged in decreasing order. Okay, तो यहां पे हमें कैसे लिखना है, largest to smallest number लिखना है। Okay, अब मैम वन मोर एग्जांपल ले रहे हैं, मैं आपके लिए कुछ ड्रॉ कर रही हूं और आप अपनी तरफ से अपनी नोटबुक में कोई भी नंबर्स लिखेंगे। ओके, आई एम राइटिंग हियर 128, 135, 262, देन 178। ओके, तो 1 1 1 1 ये 3 जो नंबर्स हैं, इन 3 में हमें यहाँ पे कंपैरिजन भी कर रहे हैं और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखना है इनको। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे और हमें नंबर को भी कंपैरिजन करना है। तो 1 1 1 सबसे पहले तो देखिए आप 100 प्लेस पे क्या लिख रहे हैं, हम 1 1 लिख रहे हैं। तो जब तीनों ही सिमिलर आ रहा है तो हम कौन से नंबर पे मूव करते हैं, हम 10th प्लेस पे मूव करते हैं। बट हियर इज 2, यहां पे क्या लिख रहे हैं 2, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कौन सा वैल्यू लिखना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखना है। तो इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू विच वन इज, दिस वन इज स्मॉलेस्ट, राइट। तो असेंडिंग में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे 128। देन हमें कौन सा लिखना है, सेकेंड नंबर पे बताइए मैम को कौन सा लिखेंगे हम, 128 के बाद क्या लिखेंगे, 128 के बाद हमें लिखना है 135, बिकॉज हम 10th प्लेस पे मूव करेंगे। तो 10th प्लेस पे अगर कंपेयर करते हैं तो 3 और 7, तो देन 135। आफ्टर दैट अब ये नंबर लिख सकते हैं, नो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज हमें क्या करना है 1 1 प्लस, यानी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाना है। तो इंक्रीज करेंगे तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे 178। आफ्टर दैट 262। सेम हम अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, अगर मैंने ये जो स्टिक्स बना रखी हैं, ओके, अब इन स्टिक्स पे मैंने कुछ पेस्टिंग किया हुआ है पेपर, और उस पेपर पे मैंने नंबर्स लिखे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर्स के लिए मैं नंबर लिख रही हूं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, 51, 93, 11, 48। ओके, और ये हमें किस में लिखना है, ये हमें लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे जो बिगेस्ट वैल्यू है, तो बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है, देखिए 9 और 3। ठीक है, 93 देख रहे हैं। तो अगर हम 10th प्लेस पे इन सबको कंपेयर करते हैं तो विच वन इज ग्रेटर, 93 इज ग्रेटर। आफ्टर दैट 93 के बाद देखिएगा 51, बिकॉज 5 और 4 में हम कंपैरिजन करेंगे तो 51 इज 5 नंबर इज ग्रेटर। आफ्टर दैट 4 8 48 एंड लास्ट वन इज 11 नंबर इज लास्ट नंबर। तो 93 51 48 11 नंबर, ये किस कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा, ये हमारा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, नाउ वी विल टेक नेक्स्ट स्लाइड। इवन एंड ऑड नंबर्स, व्हाट इज इवन एंड ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम 2 से 2 की टेबल में आता है ना, जैसे 0 से स्टार्ट कर देते हैं हम, 0 2 4 6 8। ओके, तो ये देखिए सब 2 का टेबल आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये सब किस में आ रहे हैं, 2 की टेबल में आ रहे हैं। तो ये नंबर्स तो क्या हो जाते हैं, इवन नंबर। विच नंबर, इवन नंबर। इट मीन्स जो पेयर में आते हैं। ओके, जो चीज पेयर में आती है ना, इफ आई हैव 4 बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स, 4 बॉल्स। अगर मेरे पास 4 बॉल्स हैं तो मुझे पेयर में बताना है, तो हाउ मेनी पेयर, एंड
2, तो कितने पेयर है मेरे पास? 2 पेयर है, किसके? बॉल्स के। ओके, सेम थिंग हम अगर लेते हैं, वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैंने स्क्वायर्स बनाए हैं। अब ये जो मैंने स्क्वायर्स ड्रॉ किए हैं, ये कितने हैं? स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पेयर पूछे आपसे कि पेयर कितने हैं, हाउ मेनी पेयर्स इन दीज स्क्वायर्स। तो इन दीज स्क्वायर्स में आपको पेयर्स कितना शो हो रहा है? 3 पेयर्स है। हाउ, कैसे देखिए? 1 2 एंड 3। दिस इज फर्स्ट पेयर, दिस इज सेकेंड वन एंड दिस वन इज थर्ड। क्लियर? तो 3 पेयर आपको शो होगा। तो 6 नंबर जो लास्ट वन है, दिस वन इज ऑल्सो हेयर, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो 6 नंबर है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर। और यहाँ पे भी अगर देखिए मैम लिखते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे? यस, 4 वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो 4 वैल्यू भी क्या हो जाएगा? इवन नंबर। तो 4 नंबर भी इवन। ओके, नाउ वन मोर थिंग, we are taking odd numbers. Which one? Odd numbers. Odd numbers कौन से होते हैं? Odd numbers जो होते हैं, even number को जो हमने even number में लिखे थे, उनके mid में जो आ रहे हैं, उनके between में जो numbers आ रहे हैं, उन्हें हम क्या मानेंगे? Odd numbers। सुना? उन्हें हमें क्या लेना है? Odd numbers। For example 0 2 3 2 4 6 8। ओके, ये मैम ने ले लिया है नंबर्स। तो अब देखिए 0 और 1 के मिड में, 0 और 2 के मिड में 1, 2 एंड 4 के मिड में 3, देन 4 एंड 5 के मिड में, 4 एंड 6 के मिड में 5, 6 एंड 8 के मिड में 7। तो 1 3 एंड आफ्टर 8 here is 9। ओके, तो 1 3 5 7 9, these numbers are odd numbers. Which numbers? Odd numbers. Okay, clear beta? Even and odd numbers. So first of all we will take even numbers. The numbers that can be counted in pairs are even numbers. For example 8 teddy bears. How many? 8 teddy bears. Okay, look at here. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 number. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी? 8। और जो ये लास्ट नंबर आ रहा है 8, ये 8 नंबर क्या है? दिस इज इवन नंबर। व्हाई इट इज इवन नंबर? ये क्यों है 8 जो है इवन नंबर? बिकॉज ये 2 के टेबल में है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इन इवन नंबर। तो 8 टेडी बियर्स, 4 पेयर्स ऑफ 2 टेडी बियर्स। ये कितने पेयर्स दिख रहे हैं आपको? 1 पेयर दिख रहा है, देन सेकेंड पेयर, देन थर्ड पेयर, और ये 4 पेयर। तो हाउ मेनी पेयर्स? 4 पेयर्स है। और सिंगल पेयर में कितनी थिंग्स होती है? 2 थिंग्स होती हैं। आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, जब भी अपना न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, न्यू ड्रेस परचेज करते हैं, न्यू ड्रेसेस परचेज करते हैं, अदर थिंग्स, वाटर बॉटल, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब चीज़ लेते हैं, राइट। तो जब सेशन स्टार्ट होता है तो बहुत क्रेज होता है, अरे हम न्यू क्लास में आ गए हैं। तो आप शूज़ भी परचेज करते हैं। जब आप शूज़ लेने जाते हैं तो मार्केट में देखते हैं, वो आपको सिंगल तो शूज़ तो नहीं देगा ना, वो आपको पेयर देते हैं। आप 2 लेते हैं तो वो जो आपको मिलता है उसके अंदर आपको कितने मिल रहे हैं? शूज़, 2 शूज़ मिल रहे हैं, राइट। तो पेयर कितना हो गया? 2 शूज़ का हम पेयर को तो हम क्या काउंट करेंगे? तो 1 काउंट करेंगे, ठीक है। बट उसमें कितने थिंग्स हो रही हैं? 2 शूज़ हो रहे हैं लेफ्ट और राइट लेग के लिए। ओके, नेक्स्ट ओलंपियाड बाइट। ओके, even number have the digits 0, what is it? 0 2 4 6 8 at ones place. Which place? ones place. अभी तो मैम ने सिंगल डिजिट्स लिया था, जब डबल डिजिट होगी तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है? तो ऑड नंबर्स हैव द डिजिट्स 1 3 5 7 और 9. We have already
डन, हम ये पहले ही कर चुके हैं, एट वंस प्लेस। अब मैम वन मोर एग्जांपल लेते हैं। इफ आई एम राइटिंग हियर 48, 52, 106, देन बताइए मुझे अब कौन से इवन नंबर है और ऑड नंबर है। टेल मी। 48 आपने अपनी नोटबुक में तो लिखा ही होगा, 48, 52, 106। अब बताइए मुझे 48 इज इवन नंबर? यस, ई लिख के डिनोट कर देते हैं मैम, ई मतलब इवन नंबर। ओके, दिस वन इज ऑल्सो ई एंड दिस वन इज ऑल्सो ई। ठीक है, आपने मेरा चीटिंग करके ई ई ई तो लिख दिया, बट एग्जाम टाइम में मैम तो नहीं होंगे ना, ये ई ई ई आया कहां से, कैसे पता चलेगा हमें कि ये ई जो है इवन नंबर है। अभी देखिएगा 48 लिखा हमने, फर्स्ट ऑप्शन इज 48, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 48 है। वंस प्लेस, दिस इज अ टेंस प्लेस। मैम ने क्या कहा है कि आपको हमेशा जब भी आपको फाइंड आउट करना है तो ई जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसको देखना है। तो वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? वंस प्लेस पे डिजिट है 8। विच वन? 8। और 8 नंबर, इज इट इवन? यस, इट इज इवन। ओके, नाउ नेक्स्ट 5, 2, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, एंड 2, टेल मी, 2 बताइएगा। 2, इज इट इवन? यस, इट इज इवन नंबर। नाउ नेक्स्ट वन इज 106। तो 106 जो आपको नंबर शो हो रहा है तो 6 नंबर पे देखना है, वंस प्लेस पे देखना है। ऑलवेज 100 हो, 10 हो, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, आपको तो वंस प्लेस को देखना है। वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। अब वंस प्लेस पे आपको क्या शो हो रहा है? 6, तो 6 इज इवन नंबर। Clear? Next, odd numbers. Now, if I am writing here 3, 5, 35, 4, 6, 46, 7, 8, 78, and 95, 111. Okay? So 35, 46, 78, 95 and 111. Here is some numbers. मैम ने कुछ numbers लिखे हैं, आपको ये बताना है कौन सा even है और कौन सा odd है। वही सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है। 35 पे हमें वंस प्लेस, दिस इज द टेंस प्लेस। वंस प्लेस पे क्या है? 5 है। तो जब वंस प्लेस पे 5 है तो 5 हमें क्या शो कर रहा है? 5 हमें ऑड नंबर शो कर रहा है, बिकॉज ऑड नंबर में आपको कौन कौन से नंबर मिलते हैं? ऑड नंबर पे बताइए कौन कौन से नंबर मिलते हैं? टेल मी फास्ट। अपनी नोटबुक में लिखिएगा 1, 3, 5, 7, देन 9। ओके, तो हेयर इज 5। यस, वी गेट 5। हमें कौन सा नंबर मिल गया? 5 नंबर। तो 5 इज ऑड। हेयर इज 6। 6 इज अ ऑड नंबर? नो, दिस इज अ इवन नंबर। ओके, नाउ हेयर इज 8। वंस प्लेस पे कौन सा है? 8। तो 8 जो मिला हमें, 78 जो मैम ने लिखा था, इसमें 8 जो मिल रहा है वो क्या है आपका? 8 नंबर जो है इवन नंबर। क्लियर? नाउ हियर इज 5 अगेन 5। यहाँ पे भी 35 आया और यहाँ पे भी 95 है, तो हमें दोनों प्लेस पे 5 मिल गया। तो मैम यहाँ पे भी तो आपने ऑड बता दिया हमें, तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये नंबर ऑड होगा। ओके, नाउ हियर इज अ 111। अब 111 मीन्स क्या है? 111। तो वंस, टेंस एंड 100 प्लेस। तो वंस प्लेस पे जो आपको डिजिट शो हो रहा है, ये वंस प्लेस पे कितना है? 1। टेंस प्लेस पे 1, 100 प्लेस पे 1। बोथ आर 111, मतलब ये वंस और टेंस दोनों प्लेस पे अगर हम देखते हैं तो सबके सब ये दोनों ही किसमें मिल रहे हैं? हमें 1 मिल रहे हैं। तो हमें तो किसको देखना है? ओनली वंस प्लेस को देखना है। 1 प्लेस पे क्या मिल रहा है? हमें 1 मिल रहा है। और 1 देखिए, आपको 1 मैम ने ऑड नंबर में लिखा है। यस, आई एम राइटिंग हियर 1 लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो इट मीन्स दिस नंबर इज ऑड। दिस नंबर इज ऑड। ओके, next slide is odd numbers. The numbers that cannot be counted in pair are odd numbers. It means जो numbers pair में counted नहीं होते हैं, that are included odd numbers. Okay, तो say for example 7 teddy bears, 3 pairs of teddy bear
and one teddy bear. Okay, here is 1 2 3 4 5 6 and this one is last one 7. अब इसका तो बेस्ट फ्रेंड इसके साथ है. ओके, तो ये तो पेयर पेयर हो गए, तो 1 पेयर. नाउ इनके साथ भी इनका बेस्ट फ्रेंड है तो सेकेंड पेयर, एंड इनके साथ भी इनका बेस्ट फ्रेंड है. हियर इज थर्ड पेयर. अब यहाँ तो मिसिंग है, यहाँ इनका पेयर मिसिंग है, सो ये यहाँ पे मिसिंग है तो क्या रह गए, सिंगल रह गए. ओके, तो 7 नंबर इज ऑड. इट मीन्स जो पेयर में नहीं होते हैं वो किस में काउंट होते हैं, वो नंबर्स ऑड में काउंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एग्जाम्पल्स लेना है, सर आप डिजिट्स बोलिए जल्दी से, अपने अपने नोटबुक में लिखिएगा डिजिट्स. मैम लिख रहे हैं यहाँ पे, आप लिखिएगा अपनी नोटबुक में, कोई भी डिजिट्स लिख सकते हैं बेटा. ओके, एग्जाम्पल्स लेने के लिए कोई भी डिजिट्स अपना ले लीजिएगा. अब देखिए 1 1 दोनों क्या है, 1 नंबर क्या है, 1 नंबर इज ऑड. हियर इज ऑल्सो 1 ऑड एंड दिस वन इज 6. 6 इज इवन नंबर. 6 क्या है, इवन नंबर, बिकॉज ये पेयर बन जाएगा. कैसे बन जाएगा पेयर, 1 2. पेयर बनाने के लिए मैम आपको फिर अगेन बॉक्सेस बना रहे हैं यहाँ पे. 5 and 6. हाउ मेनी बॉक्सेस, 6 बॉक्स मैंने बनाए हैं. तो ये देखिए इन दोनों का 1 पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा और इन दोनों का भी पेयर बन जाएगा. राइट, तो 6 नंबर जो लिखा है ये इवन नंबर क्यों लिखा, क्योंकि ये किस में हो गए, पेयर में. इवन में पेयर में होते हैं और ऑड में पेयर में नहीं होते. 8 इज ऑल्सो पेयर और 6 भी क्या हो जाएगा, पेयर. तो ये दोनों जो हैं बोथ नंबर्स आर even number. Both numbers are even number. 36 is also even number. Clear? Now formation of numbers. फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है, नंबर्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें देखिए क्या लिखना होता है आपको. 2 डिजिट नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स हम रिपीटेशन में लिखते हैं और कुछ नंबर हम रिपीटेशन में नहीं लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैम ने अगर आपको कहा है कि 44 लिखिएगा, तो आप क्या करेंगे, 4 और 4 ही लिखेंगे, बिकॉज 44 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा. दिस नंबर इज रिपीटेशन. रिपीटेशन मीन्स होता है सेम नंबर को हमें दोबारा लिखना. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मा ने आपको किसी काम के लिए बुलाया, मम्मा किसी काम में बिजी हैं और आपकी हेल्प की नीड है उन्हें, तो आपके मम्मा आवाज लगाएंगे ना. तो आप कितना भी जो मतलब 1 टाइम में सुन लेते हैं वो तो जल्दी से जाके मम्मा की बात सुन लेते हैं. कुछ बच्चे होते हैं टीवी में बिजी हैं, मोबाइल में बिजी रहे, तो वो क्या होंगे, थोड़ी देर बाद सुनेंगे, मम्मा थोड़ा शाउट करेंगे ना, तब जाके जाएंगे. तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे, अगर मैंने यहाँ पे 45 लिखा तो ये 45 क्या हो जाएगा, सिंगल टाइम. बट ये 44 2 टाइम्स मम्मा ने बोला ना नेम, और यहाँ पे मम्मा ने 1 टाइम ही बोला. राइट, तो 45 इज अ विदाउट रिपीटेशन, सेम डिजिट रिपीट नहीं हुई है, बट हेयर इज अ रिपीटेशन. यहाँ पे हमने उस नंबर को रिपीट किया है. ओके, 2 डिजिट्स नंबर, हमेशा हमें अभी सिर्फ 2 डिजिट नंबर पे ही फोकस करना है. ठीक है, तो विदाउट रिपीटेशन मीन्स जिसमें नंबर का रिपीटेशन नहीं होता है. 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 5 and 8. 2 नंबर्स है हमारे पास, कितने नंबर्स हैं, 5 और 8. 5 और 8 से हमें ऐसे नंबर बिल्डअप करने हैं जो क्या कर रही हैं, विदाउट रिपीटेशन हो रहे हैं. तो 5 और 8 हो जाएगा, तो 58 and here is 85. ओके, एंड विद रिपीटेशन मतलब उनको दोबारा बार बार उनका नेम मम्मा को बोलना पड़ रहा है. तो 2 डिजिट्स नंबर, जो 2 डिजिट नंबर्स हैं फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 5 and 8 with repetition. What is it? With repetition. देखिए with repetition में 5 5 मम्मा को 2 टाइम्स बोलना पड़ा, 5 5 तो 55. Now here is a 5 8 58. Here is a 85 8 5 85. Here is a 88. तो 88 और 55 नंबर क्या हो जाएगा, with repetition. क्लियर है, ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, with repetition. Now 3 डिजिट्स नंबर, अभी हमने 2 डिजिट्स नंबर लिए थे, अब 3 डिजिट्स नंबर लेंगे. 3 डिजिट्स नंबर में जैसे मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास नंबर है
2, 6 और 4। 2, 6, 4 मैंने 3 डिजिट्स ले लिया। अब 3 डिजिट से मुझे क्या करना है, नंबर बिल्डअप करना है। तो नंबर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो 264 ही ले लेती हूं मैं, क्लियर। देन 624 ले लिया, ओके। सिंगल सिंगल वाले ले लेते हैं पहले, जो गुड स्टूडेंट्स है ना वन टाइम ही सुन लेते हैं। देन 4, 2, 6, ओके। देन 6, 4, 2, after that 2, 2, 2, clear, 6, 6, 6, then 4, 4, 4। अभी देखिए उनको 3 टाइम्स रिपीट किया है, 2, 2, 2, 4, 6, 6, 6 और 4, 4, 4, और 2 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हैं, 2, 6, 6, 2, 4, 4, it means 244। then 6, 2, 2, 622। यहां पे भी डिजिट्स का क्या हुआ है, रिपीटेशन हुआ है, ओके। यहां 3 टाइम्स रिपीटेशन हुआ है, यहां डिजिट्स का 2 टाइम रिपीटेशन हुआ है, और हेयर इज नो रिपीटेशन। सिंगल वन टाइम जो नंबर है, जो डिजिट्स आपको प्रोवाइड हुए हैं उनसे आपने सिंगल डिजिट है। इट मीन्स ये तो क्या हो गया है, ये हो गया है विदाउट रिपीटेशन, और ये वाले जो नंबर्स है दीज आर विद रिपीटेशन, ओके। नाउ सेल्फ टेस्टर। अब टाइम आ गया है, इतनी देर तो मैम ने बताया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए। अब देखते हैं कितना समझ में आया और कौन से स्टूडेंट जल्दी जल्दी, किन की पेंसिल में मैजिक है और जल्दी से आंसर लिख देते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इवन नंबर, विच नंबर, इवन, हियर इज ऑड, नो, इवन, EVEN, इवन। तो हमें किस पे फोकस करना है, वंस प्लेस पे फोकस करना है। 3, 5, 6, 7, तो 3, 5, 7 नंबर इज ऑड नंबर, इवन इज 6, तो 96। इट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट, ओके। कैसे है वो भी मैम एक्सप्लेन करते हैं, क्यों है वो भी बता देते हैं। इवन नंबर जो होता है, इवन नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर में नंबर होते हैं 0, 2, 4, 6 और 8। अब देखिए आपको 0 मिल रहा है, नो, 2 मिल रहा है, नो, 4 मिल रहा है, नो, बट 6 तो हमें, वी गेट 6 हेयर, सी नंबर पे हमें 6 मिल रहा है और वंस प्लेस पे ही मिल रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ओके। नेक्स्ट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। विच नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा सा, जैसे आप हो ना लिटिल लिटिल किड्स, उसी तरीके से ये भी नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर देखना है हमें। दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 4 to 7। ईच डिजिट यूज्ड ओनली वंस, ओनली वन टाइम में वो नंबर यूज होना चाहिए। इट मीन्स आपको वहां एग्जाम में दिया होगा विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन। अब ईच डिजिट यूज्ड ओनली वंस, वंस मीन्स सिंगल बार, इट मीन्स आपका वो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो आपको नंबर कौन सा दिया हुआ है, 4 to 7, here is 4, 2 और 7। आपके पास 3 डिजिट्स हैं और इनको हमें फाइंड आउट करना है और सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट पहले हम तीनों डिजिट्स में देखेंगे कौन सा स्मॉलेस्ट है। दिस वन इज स्मॉलेस्ट, तो 2 इज स्मॉलेस्ट, ओके। तो 2 होगा, फिर देन 4 एंड 7, तो ए आंसर इज करेक्ट, ओके। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर एंड फिल द बॉक्स। आपको यहाँ पे एक बॉक्स शो हो रहा है, इसको फिल करना है। कैसे फिल करना है, कलर से फिल नहीं करना है, फिल किससे करना है, ABCD, जो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विच वन इज, जो यहाँ पे आएगा, जो भी इनमें से सही है, विच वन इज करेक्ट, उसी को आपको यहाँ पे फिल करना है, ओके। तो अभी देखिए ये नंबर नेम्स में लिखा हुआ है। हमारे जो फर्स्ट सेशन था उसमें मैम ने आपको बताया था, SOF का जो फर्स्ट सेशन था उसमें आपको नंबर नेम्स के बारे में बताया था। अब हम यहाँ पे जो नंबर्स नेम की सीखे थे ना फर्स्ट सेशन में, उसी का यूज करेंगे। 695, और ये 95 तो बेस्ट फ्रेंड है, दोनों वंस और टेंस प्लेस वाले जो होंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो 95 क्या लिखना है हमें, टुगेदर लिखना है। तो 695 आई एम राइटिंग, यहाँ पे लिख रही है मैम 695, ओके। नाउ हियर इज अ 529, 29, तो 100 प्लेस पे 5, देन 29, 529, 600
95। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, और कंपेयर मीन्स दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर बेटर है, इट मीन्स कौन सा ग्रेटर है। तो 6 and 5, 6 5 में से कौन सा ग्रेटर है, दिस वन इज ग्रेटर। तो यहां पे बताइए कौन सा साइन लगेगा, सी। तो आंसर इज सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स इन द गिवन क्लाउड आर ऑड। ये आपको एक क्लाउड दिख रहा है, इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स को मैम स्क्रीन पे लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिख जाएंगे, शो हो जाएंगे। 520, 731, 24, 95, 79, 61 एंड 80। आई होप सबको दिख रहा होगा ये, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हमें कौन से नंबर चाहिए, हाउ मेनी नंबर्स इन द गिवन क्लाउड आर ऑड। इस क्लाउड में जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें हमें काउंट करने हैं कि ऑड नंबर्स कितने हैं। तो देखिए हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है, टेंस प्लेस पे तो नहीं करेंगे, किस पे करेंगे, वंस प्लेस पे। एग्जैक्टली वन प्लेस पे ही हमें फोकस करना है, और वंस प्लेस कहाँ होता है, विंडो सीट के पास। तो विंडो सीट कहाँ मिलेगी, यहां पे मिलेगी। ओके, तो देखिए 0 नो, 1 यस, 1 इज ऑड नंबर, 1 क्या हो जाएगा हमारा, ऑड नंबर हो जाएगा। देन 4 नो, 5 इज ऑड नंबर, 9 इज ऑड नंबर, 1 is also odd number and 0 is not odd number, it is even number. तो 1 2 3 4, how many, 4। तो B option is correct, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B। okay, now next one is which of the following set of numbers are arranged in ascending order। which number असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। वो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें इंक्रीजिंग की तरफ जाना है। मैम ने यहाँ कुछ स्टेयर्स ड्रॉ की थी, हमने 1 2 3 4 लिखा था, और वो कैसे जा रहा था, एरो कैसे जा रहा था मैम का, आई थिंक सबको लर्न होगा, इस तरीके से जा रहा था। और जब ये एरो ऐसे जाता है इट मींस आपका इंक्रीजिंग हो रहा है। आप अभी सेकंड क्लास में है, नेक्स्ट सेशन में कौन सी क्लास में जाएंगे, थर्ड क्लास में, तो वो क्या हो रहा है, आपका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताने के लिए अब तो ये 3 डिजिट्स दे रखी है। अब 3 डिजिट्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम थिंग, हमें क्या करना है, नंबर्स का कंपैरिजन करना है। नंबर्स का कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें किसको फोकस करना है, 3 और 2 नंबर्स को देखना है। तो 2 नंबर्स तो है ही नहीं, इट मींस फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हमें यूज ही नहीं करना। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड में 100 प्लेस पे देखना है, तो 100 प्लेस पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 और 4 है, तो ये भी नहीं होगा। 5 1 6 4, नो दिस वन इज नॉट। 1 4 5 6, ये इंक्रीजिंग में है, 1 4 5 6, इट मीन्स 135, after that 439, after that 587, then 651। तो आंसर सी हमारा राइट है। क्लियर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हम कल फिर मिलेंगे सेम टॉपिक, इट मीन्स हम प्रैक्टिस सेशन के साथ मिलेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर का जितना भी हमने नंबर नेम का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था वो कर चुके हैं। अब हमें लेना है प्रैक्टिस सेशन, और वो हम प्रैक्टिस सेशन कल लेंगे। तो बाय एवरीवन, सी यू टुमारो ऑन सेम प्लेटफॉर्म, टेक केयर।